Hello students, this is Archana Chauhan and welcome to my channel Target Study Point. आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 11 ठीक है एंड चैप्टर नेम इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. सो लेट्स स्टार्ट. सो वी हैव y इक्वल्स टू x cos x raised to power x plus x sin x raised to power 1 by x. Okay, so I suppose here u equals to x cos x whole power x and v equals to x sin x whole power 1 by x. Okay, now when we differentiate this with respect to x, then we will get dy over dx equals to du over dx plus dv over dx. Let's suppose this is equation number 1. Okay, so first we will solve u and u equals to x cos x whole power x. So on taking log both sides, we will get log u equals to x log x cos x. ठीक है, एज अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग x पहले आ जाता है. ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट this with respect to x, so we will get 1 upon u du over dx and first function as it is differentiation of second function. So second function is log, तो पहले हम log को differentiate करेंगे. Okay, so log का differentiation क्या होगा 1 upon x cos x. Now x cos x को differentiate करेंगे, but see x cos x भी के पास भी दो x के फंक्शन है. So again we will differentiate by parts. So I suppose x is the first function and cos x is the second function. ठीक है, so first function as it is and differentiation of cos x is minus sin x plus cos x as it is and differentiation of 1 is x is 1. Okay, now plus log x cos x as it is and differentiation of x will be 1. कीप इन योर माइंड, यहाँ पर हम दो बार 2 times हम अप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट रूल. ठीक है, सो यहां से x कट जाएगा. नाउ वी विल गेट u ओवर dx और u इधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा बिकॉज इट इज इन डिविजन हियर. सो वी विल गेट फ्रॉम हियर माइनस x sin x plus cos x upon cos x plus log cos x cos x. Okay, so du over dx we will get x cos x whole power x. ये जो वैल्यू है किसकी है, u की है. And from here we will get minus x sin x upon cos x that is 10x plus 1 cos x upon cos x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. Now log x cos x and let's suppose this is equation number 2. Now we will solve v and v is x sin x whole power 1 by x. Now taking log both sides, दोनों तरफ का log ले लेंगे. So we will get log v equals to 1 by x log x sin x. ठीक है, बहुत ध्यान से इसको लिखना क्योंकि कभी कभी क्या होता है बाय मिस्टेक x छूट जाता है या कुछ भी, तो बहुत केयरफुली हमने इस फंक्शन को यहाँ पर राइट कर लेना. नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, इट इज डन नाउ. सो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 1 अपॉन x पहले आ जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा log x sin x. नाउ डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x. x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर वी विल गेट 1 अपॉन v dv ओवर dx इक्वल्स टू, लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट फंक्शन and this is second function. इसको हमने second function सपोज कर लिया. Now first function as it is differentiation of second function. So log का differentiation क्या होएगा 1 upon x sin x. Now we will differentiate x sin x. So x sin x, there are two functions of x. So again we will suppose first second. So first as it is second का differentiation plus second function as it is first का differentiation. Clear? Now second function as it is and first function का differentiation. So we will get minus 1 by x square because we know differentiation of 1 upon x will be minus 1 by x square. Okay, now calculate it. 1 upon v dv over dx. From here we will get 1 upon x square sin x. Okay, now x cos x plus sin x and from here we will get 1 upon x square and log x sin x. Got it?
And see, we can take x square, 1 upon x square is a common, okay, or you can say take LCM. So dv over dx. अब मैं v को राइट हैंड साइड में आप मल्टीप्लीकेशन में इसको रख देंगे, तो मल्टीप्लीकेशन में जाते इसकी वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं x sin x होल पावर 1 by x. नाउ वी विल गेट x cos x. सी देखो x cos x यहाँ पर है, तो अगर मैं sin x को सिर्फ अंदर एंट्री करा दूं, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, x cos x अपॉन sin x, इट विल बी cot x. ठीक है, cos x के अपॉन में sin x आएगा तो cot x एंड प्लस 1. ठीक है, एंड अपॉन में टोटल के x स्क्वायर. ठीक है, ये हम लिख सकते हैं एंड माइनस 1 by x स्क्वायर एंड log x sin x. ठीक है, थोड़ा सा और इसको अभी सॉल्व करते हैं, तो dv over dx x sin x whole power 1 by x and this is x square and we will get x cot x plus 1 minus log x sin x. ठीक है, let's suppose this is equation number 3. So from equation 1, 2 and 3 we will get, from equation 1, 2 and 3 we will get the value of dy over dx equals to dy over dx की वैल्यू पुट करिए, क्या हो जाएगी, x cos x whole power x and minus x tan x plus 1. ठीक है, एंड प्लस log x cos x. ठीक है, ये वैल्यू यहां से आ जाएगी. नाउ वी विल पुट द वैल्यू from equation number 3, that is value of dv over dx. So we can write here x sin x whole power 1 by x and in bracket we can write x cot x plus 1 minus log x sin x upon x square. ठीक है, so students this is the required differentiation of the given equation. ठीक है, so I hope it is understood to you. Okay, now pause the video to be note it down. Now students, let's check for question number 12 of exercise 5.5. So question is find dy over dx of the function given in exercise 12 to 15. So we will start from question number 12. So in this question again we have two functions. ठीक है, so इनको हम क्या करेंगे, फिर से सेपरेटली सॉल्व करेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद हम इसमें वैल्यू रख देंगे. अलग अलग क्यों सॉल्व करना होता है, मैं पहले भी क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि वी डोंट हैव एनी रूल log u प्लस v. log u प्लस v के लिए हमारे पास कोई भी रूल नहीं है, इसलिए वी सपोज लेट सपोज इट इज u एंड दिस इज v इक्वल्स टू 1. मैंने क्या किया, u को ये फंक्शन सपोज कर लिया x रेज टू पावर y एंड y रेज टू पावर x को v सपोज कर लिया. नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू s, x ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगर x के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करती हूँ, देन आई विल गेट du ओवर dx प्लस dv ओवर dx इक्वल्स टू 0. ये मेरे को मिल जाएगा. सो लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ सॉल्व u equals to x raised to power y. Okay, now take log. So log u equals to y log x. Now differentiate this equation with respect to x. So I'll get 1 by u du over dx equals to, first as it is, let's suppose this is function, first function and this is second function. So first function as it is and differentiation of
second function, that is 1 upon x, and second function as it is, and differentiation of second function, that is dy over dx. Okay, now we will calculate it, d over dx, and u चले जाएगा right hand side में in multiplication, and we have x raised to power y, and it is y upon x plus log x into dy over dx. ठीक है, सो यहां से हमें ये मिलेगा. Now solve next one, that is v equals to, so we have v equals to y raised to power x, ये हमारे पास है. Now take log again, so we will have log v equals to x log y. Okay, now differentiate it with respect to x. Okay, so we will get 1 by v dv over dx equals to, now again apply first, second. Okay, so first function as it is, differentiation of log y, that will be 1 by y. Okay, now do differentiation of y, that is dy over dx, and log y second function as it is, function first function for differentiation 1. So from here we will get dv over dx equals to x by y and dy over dx plus log y. And one more thing, ये जो value है v, ये RHS में जाएगा, and we will put the value of v, that is y raised to power x. This is equation number 3, and let's suppose this is equation number 2. ठीक है, so from equation 1, 2 and 3, इन तीनों equation की help से we will have equation d over dx. So first we will put the value of d over dx. So x raised to power y and y by x plus log x dy over dx. Okay, now plus y raised to power x and x upon y dy over dx plus log y equals to 0. And now see, देखो यहाँ पर भी dy over dx है और यहाँ भी dy over dx है. ठीक है, तो इस टर्म और इस टर्म को एक साथ ले लेते हैं. ठीक है, और dy over dx इसमें से कॉमन कर लेते हैं. तो अगर ऐसा करते हैं तो देखो क्या मिलेगा, dy over dx कॉमन किया. ओके, तो ये x raised to power y इसके साथ जाएगा, तो वी विल गेट x raised to power y log x. ओके, ऐसे ही यहाँ क्या होगा, जो y raised to power x इसके साथ जाएगा. बट सी नीचे भी क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में y लिखा हुआ है, तो y जब ऊपर जाएगा इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1, क्योंकि बेस सेम होंगे, है ना. तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x y x -1. ठीक है, नाउ जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको लिख लेते हैं. ये यहां से क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर x रेज टू पावर y है और y अपॉन x है, तो x ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो पावर हो जाएगी x रेज टू पावर -1. बिकॉज बेस इज सेम, सो वी कैन राइट y x y -1. Okay, and in the same manner we have plus y raised to power x log y. ठीक है, इक्वल्स टू 0. मेरे ख्याल ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ जानी चाहिए. यहाँ से dy over dx कॉमन कर रहे हैं, तो ये कैसे बचा है और यहाँ से ये बच रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन एंड आफ्टर दैट इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, सो वी कैन राइट dy over dx इक्वल्स टू, देखो ये चले जाएगा माइनस में क्योंकि ये प्लस है. ओके, जब भी हम इसको ट्रांसपोज करते हैं आरएचएस में, इट हैज ओनली ऑलवेज हैव साइन माइनस. सो y x y -1 प्लस y रेज टू पावर x log y.
एंड अपॉन ये जो मल्टीप्लीकेशन में है ये डिवीजन में चला जाएगा. सो एक्स रेज टू पावर वाई लॉग एक्स, ठीक है, प्लस एक्स वाई एक्स माइनस 1, ठीक है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन. ओके, लेट्स चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 13. Now, students, check for question number 13. It is y raised to power x equals to x raised to power y. So, simple. देखने से पता लग रहा है कि हमें इस क्वेश्चन में दोनों तरफ log लेकर ही सॉल्व करना होगा, ठीक है. So, on taking log both sides, ठीक है. Now, what will happen? We will get x log y equals to y log x. ठीक है. Now, differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x both sides. ठीक है. Now, we will get, see, this is first function, let's suppose this is second, and for this is first function and this is second function. So first function as it is differentiation of second function log y है, तो log y का differentiation क्या होगा 1 upon y, and when we will differentiate y then we will get dy over dx. Now plus log y differentiation of first function, that is 1. Okay, now in right hand side first function as it is differentiation of second function, that is 1 upon x. Now second function as it is differentiation of first function, that is y, and dy over dx. ठीक है. अब देखो यहाँ पर ये dy over dx की टर्म है और ये भी dy over dx की टर्म है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, dy over dx वाली टर्म्स को LHS में कर लेते हैं एंड जो भी एक्स्ट्रा टर्म्स बचती हैं उनको RHS में सेंड कर देते हैं, ठीक है. तो यहां से हमें मिलेगा x अपॉन वाई dy over dx माइनस log x dy over dx इक्वल्स टू y अपॉन x, ठीक है. और यहां से क्या जाएगा log y, इट इज इन प्लस, दैट्स वाई इधर जाकर कैसा हो जाएगा माइनस में, ठीक है. अब यहां से dy over dx क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे. सो जैसे आप कॉमन करते हैं देन यू विल गेट x अपॉन y, ठीक है. x अपॉन y यहां से मिलेगा एंड c log x यहां से मिल जाएगा, ठीक है. नाउ इक्वल्स टू, इफ आई टेक एलसीएम x देन आई गेट y माइनस x log y. क्लियर. फ्रॉम एयर ओके, यहां पर भी हम एक काम कर सकते थे, एक काम करते हैं यहां पर भी एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बीच में माइनस हो जाएगा और ये y log x आ जाएगा, ठीक है. देखो यहां से अगर एलसीएम ले लिया जाए तो ये y एलसीएम हो गया और ये y इसके साथ चला जाएगा log x के साथ, ठीक है. नाउ वी कैन राइट dy over dx इक्वल्स टू, वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y ऊपर जाएगा एंड ये वाली टर्म नीचे आएगी. सो वी कैन राइट y माइनस x log y अपॉन x माइनस y log x, ठीक है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन. ओके, सो जस्ट स्टॉप द वीडियो एंड राइट डाउन इट. Right now. Now, let's check for question number 14. It is cos x raised to power y and cos y raised to power x. So, क्वेश्चन को देखने से ही समझ आ रहा होगा कि हमें क्या करना है, log लेना है, ठीक है. तो just let's take log both sides. So, we will get y cos x equals to x cos y, ठीक है. यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है. सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आपको मेंशन करने चाहिए, ठीक है.
इससे आपकी स्कोर अच्छी हो जाती है, ठीक है। इट्स एटिकेट्स टू सॉल्व अ क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स की ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स या फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। सो सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स यू शुड बी इंक्लूड इन योर questions, okay। So it is again part 1 and part 2, and here we will suppose again first function, second function, okay। Now apply first function as it is, or you can write differentiate both sides with respect to x, ठीक है। So we will get from here first function as it is differentiation of second function, cos x का differentiation होता है minus sin x, and cos x second function as it is, and differentiation of first function, that is dy over dx. Now come to RHS side, first function as it is differentiation of second function, so it is minus sin y, and differentiation of y will be dy over dx. Now cos y as it is, and differentiation of function x, that is 1, okay। So we will get from here minus y sin x plus cos x dy over dx equals to minus x sin y dy over dx plus cos y. Now see, dy over dx यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम इसको LHS में ट्रांसपोज कर लेंगे, एंड ये जो टर्म है इसको RHS में सेंड कर देंगे, ठीक है। सो जब हम इसको LHS में लेकर आएंगे तो dy over dx कैन बी टेक कॉमन, सो राइट dy over dx अगर हम कॉमन कर लेते हैं देन वी विल गेट cos x फ्रॉम हियर, एंड जब ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस का साइन है तो प्लस में चेंज हो जाएगा x sin y, ओके। एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट cos y, एंड इधर में ये माइनस का है तो ये RHS में जाकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। नाउ dy over dx इक्वल्स टू cos y प्लस y sin x अपॉन क्या बनेगा, cos x plus x sin y. So this is the required solution, okay। Yes students, now question number 15, ठीक है। So again on taking log both sides, ठीक है, दोनों तरफ से log लेने पर then we will get log xy equals to log e raised to power x minus y, okay। See, log ab, we already discussed the formula when we apply product of two functions log, then it will be log x plus log y equals to, और ये क्या होगा, x माइनस y log e, एंड log e की वैल्यू कितना होता है, 1, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, log x प्लस log y इक्वल्स टू x माइनस y, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट with respect to both sides with respect to x, ठीक है। So we will have 1 by x plus 1 upon y dy over dx, और यहां से मिलेगा हमें 1 minus dy over dx, ठीक है। So we can take common dy over dx, इसको हम इधर लेकर आ सकते हैं। तो जब इधर लेकर आओगे आप LHS में, तो यहाँ पर है 1 upon y, ठीक है। देखो डायरेक्टली मैं कर रही हूँ, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड जब हम एलसीएम लेंगे तो ये कुछ ऐसे 1 plus y बनेगा, ठीक है। एंड इधर में 1 minus 1 upon x, सो टेक द एलसीएम। जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, x बन जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, x minus 1 upon x, क्लियर।
जस्ट चेक 1 अपॉन एक्स माइनस हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा. ठीक है. नाउ वी विल गेट dy over dx इक्वल्स टू, सी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी विल डू हियर, y चला जाएगा न्यूमरेटर में एंड 1 प्लस y आ जाएगा डिनोमिनेटर में. सो वी कैन राइट फ्रॉम हियर y x माइनस 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस y. ठीक है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 15. Now check for question number 16. It is find the derivative of the function given by fx equals to 1 plus x square, 1 plus x raised to power 4 and 1 plus x raised to power 8 and hence find f test 1. ठीक है. करना क्या है, ये जो फंक्शन गिवन है इस फंक्शन का हमें पहले तो डेरिवेटिव फाइंड करना है. जब वो डेरिवेटिव आ जाएगा तब उस डेरिवेटिव की वैल्यू एफ टेस्ट 1 मतलब x की जगह 1 आप रखेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. ठीक है. तो आई होप ये बात तो समझ में आ गई है कि हमें करना क्या है. हमें करना है या क्या है, डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव. ठीक है. मीन्स फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करना है. उसके बाद जब हमें फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन के बाद जो भी मिलेगा उसमें हम x की वैल्यू 1 रख के उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. Okay, so let's start. So given function is fx equals to 1 plus x raised to power 2 and 1 plus x raised to power 4 and 1 plus x raised to power 8. So बहुत ही सिंपल सी बात है कि प्रोडक्ट में हमारे पास टर्म्स है तो डेफिनेटली वी हैव टू टेक log. So taking log of both the sides. ठीक है. दोनों तरफ log लेने पर. ठीक है. So we can write log fx, ठीक है, इक्वल्स टू log 1 plus x. क्योंकि ये सब प्रोडक्ट में था तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं प्लस लगाकर log 1 plus x स्क्वायर प्लस ये बनेगा log 1 plus x raised to power 4 plus log 1 plus x raised to power 8. ठीक है. Now differentiate it with respect to x. Differentiate both sides with respect to x. ठीक है. So fine. So log fx means 1 upon fx and f dash x. ठीक है. log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन fx और fx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा f dash x. एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट 1 अपॉन 1 प्लस x एंड जब 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का होगा 0 और x का हो जाएगा 1. सो नो नीड टू राइट हियर. एंड 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर log 1 प्लस x स्क्वायर का. नाउ वैल्यू विल डिफरेंशिएट 1 प्लस x स्क्वायर. सो 1 का क्या होगा 0 एंड x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा. सो वी विल राइट हियर 2x. द सेम मैनर इसका होगा 1 प्लस x raised to power 4 and when we will do 1 plus x raised to power 4 its differentiation will be 1 का हो जाएगा 0 and x की power 4 का होएगा 4x cube plus 1 upon 1 plus x raised to power 8 and 1 plus x raised to power 8 का differentiation क्या होएगा 1 का हो जाएगा 0 and x raised to power 8 will be as 7x raised to power 7. ठीक है. So sorry 8 raised to power 8 x raised to power 7. Now we have the values. इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा ये 1 upon 1 plus x plus 1 upon 1 plus x square ये आ जाएगा 2x. ठीक है. यहाँ से मिलेगा 4x cube upon 1 plus x raised to power 4 और यहाँ से मिलेगा 8x raised to power 7 एंड 1 प्लस x रेज टू पावर 8. यहाँ से ये टर्म मिल जाएगी एंड जो fx है वो भी क्या होगा RHS में चला जाएगा बट इट विल इन मल्टीप्लीकेशन. सो फ्रॉम हियर f dash x वैल्यू ऑफ fx वी विल राइट हियर 1 plus x स्क्वायर
1 plus x raised to power 4, 1 plus x raised to power 8. In bracket, we have 1 upon 1 plus x, 2x upon 1 plus x square, and 4x cube upon 1 plus x raised to power 4, and 8x raised to power 7 upon 1 plus x raised to power 8. Clear? Now we need to find value at 1. ठीक है, ये तो हमारा डेरिवेटिव आ गया, मतलब हमने अभी इतना काम किया ऐसे, डेरिवेटिव अभी निकाला है. अभी हमने क्या और फाइंड करना है? एफ 1 और फाइंड करना है. ओके, सो आरएचएस में जहां जहां भी एक्स है हमारे पास, वहां वहां हम क्या करेंगे? 1 रख देंगे. ठीक है, सो यहां से मिलेगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1. ठीक है, यहां पर भी 1 का 1 प्लस 1 डायरेक्टली ही मैं कर दे रही हूँ, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो लौट कर हमें 1 ही मिलता है. एंड यहां से 1 प्लस 1 प्लस 2, एंड 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1, 1 प्लस 1 प्लस 4, 1 प्लस 1 एंड प्लस 8, 1 प्लस 1. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो यहां से देखो क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 2, 2, 2, 2. ठीक है, तो 2 2 जो 4, 2 जो 8, 2 जो 16. यहां से हमें मिलेगा 16, एंड यहां से 1 अपॉन 2. एंड सी सब जगह क्या है? 2 ही मिलेगा. सो वी कैन डायरेक्टली टेक द एलसीएम. सो ये आ जाएगा, एलसीएम इसका बन जाएगा 2. यहां से मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8. ठीक है, नाउ इसको आगे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो एफ डैश 1 इक्वल्स टू 16 हमारे पास बाहर है. ठीक है, नाउ ऐड देम 15 अपॉन 2. ठीक है, इसको मिलेगा 15 अपॉन 2, एंड 2 1 जा 2 8 जा 16, एंड एफ डैश 1 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 15, सो 120. ठीक है, सो एफ टेस्ट 1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 120 वैल्यू आ गई. ठीक है, सो जस्ट पॉज द वीडियो टू बी नोट इट डाउन. नाउ स्टूडेंट्स चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 17. It is differentiate x square minus 5x plus 8, x cube plus 7x plus 9 in 3 ways mentioned below. ये जो टर्म हमें गिवन है यहाँ पर, ठीक है, इसको हमें 3 तरीके से, 3 वेज से हमने इसको सॉल्व करना. बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, एंड सेकेंड वन इज बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल. इसका मतलब क्या होगा कि आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे. ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे. उसके बाद जो हमें मिलेगा, आफ्टर दैट यू विल डू डिफरेंशिएशन. एंड थर्ड वन इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. लॉग लेकर उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे. एंड आफ्टर दैट वी नीड टू टेल हियर डू दे ऑल गिव द सेम आंसर. और हमें ये बताना है कि 3 वेज से जो हमने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है, क्या तीनों मेथड से रिजल्ट सेम मिल रहा है, ये हमें इसमें बताना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर प्रोडक्ट रूल. पहले हम प्रोडक्ट रूल के लिए इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 8 x क्यूब प्लस 7x प्लस 9. ओके, डू वन थिंग, राइट हेयर y. ठीक है, थोड़ा सा इजी लगता है इसको ऐसे करने से. नाउ अप्लाई प्रोडक्ट रूल. ठीक है, फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं. सो लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड. ओके, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x. Okay, so we will get in LHS dy over dx. First function as it is differentiation of second function. So इसका differentiation क्या होएगा? 3x square plus 7. Okay, now second function as it is
डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फर्स्ट फंक्शन, वो क्या होएगा 2x माइनस 5. ओके, नाउ मल्टीप्लाई देम, मल्टीप्लाई कर देते हैं टर्म्स की. सो फ्रॉम हियर वी विल गेट 3x स्क्वायर का x स्क्वायर से होगा, तो वी कैन राइट x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5x 3x स्क्वायर प्लस 7 एंड प्लस 8 3x स्क्वायर प्लस 7. जब भी ऐसे बहुत ही लैंदी थोड़ा सी कैलकुलेशन मिले तो थोड़ा आसानी करने के लिए, इजी करने के लिए इसको इस फर्स्ट जो भी यहाँ टर्म हो इसको पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लीकेशन कर लेना चाहिए. ऐसे फॉर सेकेंड टर्म का इस ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लीकेशन, थर्ड टर्म उसका फिर इस पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लीकेशन. सेम हियर x क्यूब multiply with 2x minus 5 and 7x 2x minus 5 and plus 9 2x minus 5. Okay, now multiply कर देते हैं इधर. So we will get dy over dx. So 3x square into x square, 3x raised to power 4 and 7x square minus 15 x cube minus 5 sevens are 35x and 8 threes are 24x square. Okay, and 8 sevens are 56 here and 2x raised to power 4, 5x cube plus 7 2 ja 14x and 7 5 ja 35x. Okay, 7 2 ja 14x square आएगा. Okay, and 9 2 ja 18x and 9 5 ja 45. Okay, now arrange them. ठीक है, let's take first highest term is minus 15x cube and हमें यहां से मिल रहा है माइनस का 5x cube. Okay, so it will be minus का 20. Okay, before that we have x raised to power 4. ठीक है, it will be the highest term. So 3x raised to power 4 and 2 raised to power 4. So इन दोनों को जब ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा 5x raised to power 4. Okay, now for 3 x क्यूब के लिए चेक करते हैं. तो x क्यूब वाली एक टर्म ये है हमारे पास और दूसरी टर्म ये है. सो वी विल गेट माइनस 15 माइनस 5, सो माइनस की 20 x क्यूब. नाउ फॉर पावर 2 एक्सपोनेंट 2 के लिए चेक करेंगे. सो वी विल हैव 7x स्क्वायर हियर and 24x square here. It will be 31 and we have 14. Okay, so we will get from here 45. वो भी कैसा प्लस का हमारे पास आएगा. So plus 45 x square. Clear? Now for x we will check. So it is 35x minus and minus के 35x also we have. ठीक है, एंड प्लस का 18x. सो माइनस 35 माइनस का 70 हो जाएगा एंड माइनस 70 प्लस 18 वी विल गेट माइनस 52. ठीक है, 52x यहां से मिलेगा. नाउ फॉर कांस्टेंट टर्म वी विल चेक. इट इज 56 एंड 45. तो 6 माइनस 5 11 ये बच जाएगा, वो भी कैसा प्लस का. ओके, सो ये तो हमें किससे मिला फर्स्ट डेरिवेटिव by using product rule. ठीक है, नाउ चेक फॉर नेक्स्ट वन. वो क्या है? एक्सपैंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल. Now students check for part 2, that is by expanding the product to obtain a single polynomial. That means इन दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम इसको इसके डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. सो y इक्वल्स टू वी विल गेट एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन इस पूरे ब्रैकेट के साथ हमने करना है पहले. ओके, माइनस 5x. नाउ राइट एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 एंड प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9. ओके, now multiply y equals to x square x cube means x power 5 and 7x cube plus 9x square
minus 5x raised to power 4 and 5 7s are 35x square and minus 5 9s are 45x. Okay, and 8x cube and 8 7 56 x and 8 9s are 72. Okay, now check the terms. If there are similar terms, add them. So x raised to power 5 is only 1 here and minus 5x raised to power 4. ठीक है, ये हो गई है 5x power 4 हो गया है. And now let's check for x cube. So this and this. So 7 plus 8, 15. 15x cube. Now check for squares. So 9x square and minus 35x square. ठीक है, सो ये बनेगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा. ठीक है, तो माइनस की टर्म आएगी हमारे पास एंड 15 माइनस 9 6 26 एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ लेट्स चेक विच वन इज लेफ्ट. इट इज माइनस 45x एंड 56x. यहां से हमें ये मिल रहा है. सो 56x में से 45 माइनस करेंगे, देन वी विल हैव 6 माइनस 5 1 एंड 5 माइनस 4 इज 1 प्लस 11x. Okay, and in the last we have only 72. ठीक है, now differentiate it with respect to x. अब इसको differentiate करिए. Differentiate both the sides with respect to x. Okay, so we will get dy over dx equals to 5x raised to power 4 and 5 4s are 20x raised to power 3 and 45x square and it will be twice and it minus का हो जाएगा 2 6 12 and 2 2 4 plus 1 52x and plus 11 and 72 का क्या होएगा 0 हो जाएगा. So dy over dx हमने फाइंड कर लिया है बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल. इसको पहले हमने सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट किया, प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन किया दोनों टर्म्स का एंड उसके बाद इसको डिफरेंशिएट किया, तब हमें ये टर्म मिली है. ओके, एंड आई होप इट इज सिमिलर टू द लास्ट टर्म. ओके, नाउ डू विथ थर्ड. ठीक है, जब थर्ड के लिए चेक करते हैं. Now let's check for part third, that is by logarithmic differentiation. Logarithmic differentiation means कि हमने इस टर्म का क्या करना होगा, पहले log आप लेंगे एंड log लेने के बाद दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट करेंगे. ओके, सो टेक द डिफरेंशिएशन. ठीक है, ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ द साइड्स. ठीक है, जब दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टर्म log y इक्वल्स टू log c. इट इज इन प्रोडक्ट, सो क्या हो जाएगा log ab मीन्स log a प्लस log b. सो वी कैन राइट log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस log x क्यूब प्लस 7x प्लस 9. ठीक है, नाउ on differentiating with respect to x, differentiating both the sides, differentiating both sides with respect to x. ठीक है, now 1 upon y and dy over dx equals to 1 upon x square minus 5x plus 8. Now इसका करेंगे इस टर्म का डिफरेंशिएशन. सो इट इज 2x minus 5. x का 1, 8 का 0. नाउ प्लस 1 upon x cube plus 7x plus 9 and now do the differentiation of this term. So we will get 3x square plus 7. क्लियर, ये हमारा हो जाएगा. नाउ टेक द एलसीएम.
एलसीएम लेंगे एंड जो y है y को RHS में मल्टीप्लीकेशन में हम रखेंगे एंड y की वैल्यू दीज टू ब्रैकेट्स. सो put down x square minus 5x plus 8 and x cube plus 7x plus 9. Now take the LCM. So we will get from here x square minus 5x plus 8 and x cube plus 7x plus 9. Okay, from here we will get 2x minus 5 and in bracket x cube plus 7x plus 9. Now plus 3x square plus 7 and in bracket we have this term x square minus 5x plus 8. ठीक है. Now see, इस वाली टर्म से ये टर्म कट जाएगी एंड इस वाली से ये टर्म कट जाएगी. ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी विल गेट dy over dx equals to this bracket will multiply with this one. So we can write 2x in bracket x cube plus 7x plus 9. ठीक है. And minus 5 and in bracket again we have x cube plus 7x plus 9. ये तो इससे हमको मिल गया है एंड प्लस 3x square यहां से मिलेगा एंड इन ब्रैकेट we will have x square minus 5x plus 8 plus 7 and x square minus 5x plus 8. Now multiply these terms. So we will get 2x raised to power 4 and 2 7 is 14x square plus 2 9 is 18x minus 5x cube minus 35x and minus 45 plus 3x raised to power 4. ठीक है. यहां से हमें फिर से क्या मिल रहा है 4 मिलेगा एंड 3 5 15x क्यूब प्लस 3 8 24 x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर एंड 7 5 35x. नाउ 7 8 56. ठीक है. इन सबको मल्टीप्लीकेशन करने पर हमें ये मिल रहा है. नाउ dy over dx. ठीक है. चेक करते हैं. देखो 2x4 एंड 3x रेज़ टू पावर 4 हाईएस्ट पावर सबसे पहले लिखी जाती है. ठीक है. उसके बाद उससे छोटी फिर सबसे छोटी, इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में हमेशा पावर्स को लिखा जाता है. सो 2x4 प्लस 3x4 क्या हो जाएगा 5x रेज़ टू पावर 4. क्लियर. नाउ प्लस चेक फॉर क्यूब वाली एक टर्म हमारे पास ये है और एक टर्म हमारे पास ये है. सो 15 माइनस के हैं दोनों. सो क्या मिलेगा माइनस का 20x क्यूब. ओके. नाउ चेक फॉर स्क्वायर वाली टर्म एक ये है 14x स्क्वायर एंड सेकेंड वन इज 24x स्क्वायर. ओके. एंड वन मोर वी हैव 7x स्क्वायर. सो कैलकुलेट देम. We will have 4 plus 4 8 plus 7 15 का 5 and carry 1 and 2 2 plus 2 4 हो जाएगा and 45. और कैसा आना चाहिए प्लस का आना चाहिए 45 x square because all the terms are in plus. Now check for x. So 18x 35x and 35x. So again 35 plus 35 minus का 70x and 70x plus 18 ये बन जाएगा प्लस नहीं माइनस का 52 x हो जाएगा. Now in the last we have constant term. So 45 and 56 these two term we have. So on subtracting we will get plus 11. ठीक है. So check from the three parts जो आंसर हम लोगों का आया है हर एक मेथड से जो भी हमने किया है हमें यही इसके लिए आंसर मिला है. ठीक है. सो वी कैन से ऑल द आंसर्स आर सेम. ठीक है. नाउ चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 18.
check for question number 18. If u, v and w are functions of x, then show that d over dx of u v w equals to du over dx of u w and u dv over dx of w, ठीक है, एंड u v dw over dx इन टू वेज, ठीक है. इनको अगर हमारे पास u v w 3 फंक्शंस हैं और तीनों फंक्शन किसके हैं, x के हैं, इन दैट केस हमें ये शो करना है. और शो भी क्या करना है, 2 वेज से हमने करना है. जो फर्स्ट है दैट इज रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है. सो फर्स्ट प्रोडक्ट रूल की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है. सो लेट कर लेते हैं इसको कि y इक्वल्स टू u v w, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है, रिपीटेड, यहां पर क्या लिखा हुआ है, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल. तो लेट सपोज कुछ इस तरीके से ऐसे कर लेते हैं. क्या समझ आया इससे कि ये हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इन दोनों को हमने सेकेंड फंक्शन मान लिया. तो होगा क्या, देखो, जब हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं तो पहले क्या होते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन. तो जब हम सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तब हमारे पास अगेन वी हैव 2 फंक्शंस ऑफ x, क्योंकि v और w दोनों भी क्या है, x के फंक्शंस हैं, ठीक है. तो v w फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल फिर से अप्लाई करना होगा, ठीक है. सो दैट्स व्हाई उसने हमें क्या बोला क्वेश्चन में, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, ठीक है. तो इस तरीके से हम इसमें रिपीटेड प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो डिफरेंशिएट both sides with respect to x, ठीक है. x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं. सो वी विल हैव dy over dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है. सो डिफरेंशिएशन ऑफ vw, ओके, प्लस vw एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है. सो dy over dx इक्वल्स टू u. नाउ चेक अगेन, इसमें क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे, इसको सेकेंड फंक्शन. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड एंड सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एंड फ्रॉम हियर du over dx. नाउ ओपन इट, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके अंदर. वी विल गेट dy over dx u dot v dw over dx प्लस u dot w dv over dx. नाउ v dot w du over dx, ठीक है. चेक कर लीजिए आप, ठीक है. देखो u dot v dw over dx एंड u डॉट w dv over dx तीनों मल्टीप्लीकेशन में है. तो डजंट मैटर कि क्या आप ऑर्डर इसमें लिख रहे हैं. जनरली होता क्या है, u v w की ही फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है. तो वो एक साइकिल इसमें होता है कि u v w में ही आप इसको लिखेंगे, ठीक है. बट अगर इस तरीके से भी लिखे हैं तो ये रॉन्ग नहीं होगा, ओके. नाउ लास्ट वन इज v डॉट w. तो v डॉट w, ठीक है, क्या आ जाएगा साथ में, du over dx. ये v होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है, ये v है, ओके. नाउ अगर इसी फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे कि dy over dx जो भी है, पहले u वाली टर्म पहले आएगी, तो ये तो एज इट इज है, तो आप इसको लिखोगे u डॉट v dw over dx. नाउ इसमें आप लिखोगे u dv over dx एंड w, एंड इसमें du over dx पहले आ जाएगा एंड v एंड w. सो दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है. डेरिवेटिव ये हमने किससे निकाला है, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल से. नाउ कम टू सेकेंड पार्ट. इसमें क्या कहा है कि फाइंड बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. सो अगेन लेट y इक्वल्स टू u v w, ठीक है. तो लॉगरिथमिक से बोला है तो डेफिनेटली वी हैव टू टेक लुक बोथ द साइड्स, ठीक है. सो ऑन टेकिंग
log both sides. Clear? So we will get log y equals to log, I can write log u plus log v plus log w. ठीक है, now differentiate it. So we will get 1 upon y dy over dx and 1 upon u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, du over dx, 1 upon v dv over dx and 1 upon w dw over dx. क्लियर? नाउ dy over dx, ये y क्या होगा, RHS में जाएगा. ठीक है, सो इन RHS वी कैन राइट u v w and 1 upon u du over dx as it is plus 1 upon v dv over dx plus 1 upon w and dw over dx. क्लियर? अब UVW की अंदर मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं. सो देखो क्या मिलता है, dy over dx, जैसे ही u अंदर एंटर करेगा और इसके पास आएगा तो u से u क्या होएगा, कट जाएगा. ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं du over dx and vw. अंडरस्टैंड, यहां मैं ऐसा क्यों लिख रही हूं, क्योंकि मुझे ये किस फॉर्म में देना है, UVW देना है. ठीक है, इस फॉर्म में ये साइकिल ऐसे लगाना है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, du over dx पहले लिखा है और vw बाद में लिखा, और u से u कट गया होगा. ओके, नाउ प्लस अगेन v, UVW इसके साथ में जाएगा तो v से v कट जाएगा. ओके, तो वी विल राइट u dv over dx and w. इन द लास्ट 1 upon w. ठीक है, तो w से w कट जाएगा, then we will have u dot v dw over dx. So you can match your answer. ठीक है, यहां से और यहां से आप चेक कर सकते हो कि both are same. ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला इस बात से, समरी ऑफ द स्टोरी क्या है कि हम किसी भी मेथड से, जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ है, किसी भी मेथड से अगर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे आंसर्स क्या आते हैं, सेम आते हैं. तो वी हैव 3 मेथड्स हियर. फर्स्ट वन प्रोडक्ट रूल, सेकेंड वन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड थर्ड वन जो हमने क्वेश्चन नंबर 17 में किया था, उसमें क्या किया था, एक सिंपल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लिया था. 2 टर्म से दोनों को मल्टीप्लीकेशन किया और उसको सॉल्व किया एंड आफ्टर दैट डिफरेंशिएट किया. ठीक है, सो यू शुड नो ऑल द 3 मेथड्स. ऐसा नहीं है कि ये आसान है तो मैं इसको कर लूं या ये इजी है तो इसको मैं कर लूं, नहीं, आपको तीनों मेथड्स आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, बाय नेम ये मेथड्स पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, तो उस केस में फिर प्रॉब्लम होगी. तो क्या करना है, तीनों मेथड्स को अच्छे से स्टडी करना है एंड डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में, एग्जांपल्स हुए, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हुए, डू ऑल द क्वेश्चंस. ओके, थैंक यू.